पता नाही स्टेबलायझेशन आता नाही बाब तुम्ही करतो मैं हला रहा नहीं, ये हल रहा था. हो करेक्ट त्यात पकडायचं ला इलाहा इल्लल्लाह. बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. चला 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 Ya basta. مستح عليهم مستح ماما مقصد مقصد It's 2 in the afternoon. Outside temperature is 34 degrees centigrade. 34 As we taxi to the gate, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned the seatbelt sign off. On behalf of Saudi Team Alliance, we extend our heartfelt appreciation to choosing to fly with us. It's been our pleasure to have you with us on board, and we're looking forward to welcome you again soon. Before you leave us, please take a moment to ensure you have all your belongings with you. Should you need any assistance, our crew is here to help. Dear guests, as courtesy to your fellow guests, we ask you to allow those seated in the row ahead of you to take them out first. Thank you and enjoy your time in Jeddah. लगेज ले को जा रहे हैं होटल को अब यहाँ डालते हैं देखो गाइस चढ़ रहे क्या बैठना देखो गाइस ये पूरी बस जा रही सब होटल में जा रही ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें उसके घर को आने के लिए चुना और हम गुनहगार बंदे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के घर को देखने के लिए उसके घर का तवाफ करने के लिए उम्रा अदा करने के लिए हम लोग एहराम बांध कर निकले हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे निकलने को कबूल फरमाए, आमीन, और हमारे उम्रे के तमाम अरकान को कबूल फरमाए, और जितने दिन हम यहाँ रहेंगे अल्लाह हम सब की खैर व आफियत के साथ हिफाजत फरमाए, आमीन। अजीज साथियों, हम लोग जिस सफर पर हैं ये बड़ा मुकद्दस सफर है, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में इतनी अजमतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि यहाँ पर एक नेकी करना 1 लाख का सवाब होता है और एक गुनाह करना भी लगभग उसी के बराबर होता है। अभी हम लोग अपने सरफ खास से बड़ी मेहनतों के साथ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के घर को देखने के लिए
اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے پہنچے ہیں، تو یہاں آ کر ہم لوگ چھوٹی موٹی پریشانیوں کے لیے اللہ کے حضور میں شکایت نہ کریں۔ یہاں جو کچھ نظام ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطاف میں ایک مقام ہے، مقام ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرمائی، اس وقت اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فریاد کی کہ اس جنگل میں، اس صحرا میں تو نے گھر بنانے کا تو مجھے حکم دے دیا، لیکن یہاں پر کون آئے گا، تیرے گھر کا طواف کون کرے گا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، گھر بنانا تیرا کام ہے، بلانا میرا کام ہے۔ یہ وہی نسبت ہے جو آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے ہماری، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پیسوں کی خاطر عیش و آرام دیکھتے ہیں یہاں پر بھی آ کر۔ سوچیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اس وقت ایک پرندہ بھی یہاں پر پر نہیں مارتا تھا، ایک پانی گھٹ دور کی بات ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ سب سے یہی التجا ہے کہ جتنے دن ہم لوگ یہاں پر رہیں گے، یہاں کی عظمت کے ساتھ اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی اب تک سو کر گزار کر آ گئے ہیں، لیکن یہاں پر سو کر یا شکایتیں کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ تو میرے حال ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ سب لوگ عمرے کی نیت کر لیے ہوں گے، پھر بھی ایک مرتبہ آپ لوگوں کو ایک نیت کرا دیتا ہوں، نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا احرام باندھا ہوں، تو اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک ان لبیک، الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک ان لبیک، الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ تو عمرے کی نیت کرنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ لبیک بلند آواز سے بولنا چاہیے، کم سے کم اپنے کانوں کی آواز پہنچے، اپنے کانوں۔ اب کبھی نیکسٹ آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور نیت کریں گے کہ اے اللہ، میں فلانے کی طرف سے عمرے کا احرام باندھا ہوں، تو اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ عمرے کی نیت صرف اتنی ہی ہے، بہت آسان ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں بول رہے، آپ اتنا بول رہے کہ اے اللہ، میں عمرے کا احرام باندھے قبول کر لوں، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو بہرحال ساتھیوں، ہم لوگ انشاءاللہ ہوٹل پر پہنچیں گے، جیسی بھی ترتیب ہوگی کمروں کی، اس طرح سے ترتیب ہونے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے فریش ہونے کے لیے وقت دیا جائے گا۔ کوشش کریں گے کہ عشاء کے بعد ہم لوگ عمرے کے لیے نکلیں گے، اس لیے کہ اگر ہم لوگ عصر کے بعد جائیں گے، مغرب کے بعد اگر حرم میں جانے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے کوئی 1-2 ادھر ادھر بچھڑ جائیں گے، پھر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے ہم لوگ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام رہے گا اپنی ہوٹل پہ، اور انشاءاللہ جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہوگی، حرم سے کروڑ باہر آ جائے گا، ہو سکتا ہے 9:30-10 بجے تو لگ ہی جائیں گے۔ 10 بجے انشاءاللہ ہم لوگ عمرے کے لیے نکل جائیں گے ہوٹل سے۔ ابھی بول دے رہا ہوں میں، 10 بجے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ اس وقت تک آپ تھوڑا بہت اپنے فریش ہونے کے حساب سے تھوڑا آرام کر لیں، لیکن احرام نہ اتاریں اور چادر اوڑھ کر نہ سوئیں،
सर को खुला रखे मर्द हजरात, और पैर को ऊपर चादर नहीं ओढ़ना। औरतें एहराम की हालत में पेशानी के बाल से टूनी के नीचे तक अपनी ओढ़नी को खुला रखना है। थोड़े बहुत दोबारा जैसे ही हरम हम लोग पहुंचेंगे, सीधा पैर रखकर मस्जिद में दाखिल होंगे और दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, और उसके साथ इत्तिकाफ की नियत करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ही अंदर जाएंगे अपनी नजरों को नीचे रखते हुए जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली नजर काबे पर जब पड़ेगी, जो भी दुआ आप मांगेंगे अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। ये हदीस के अल्फाज तर्जुमा कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि इसमें आगे पीछे भी हो जाए। ठीक है, तो बहरहाल आपकी पहली नजर जब काबे पर पड़ेगी, जो दुआ आप मांगेंगे वो अल्लाह कबूल करेगा। अब हम लोग आए हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर पे, ढेर सारी तमन्नाएं, आरज़ुएं, इरादे, न जाने क्या क्या अपने दिल में ख्वाहिशात हम अल्लाह के दरबार में मांगने के लिए आए हैं। क्या क्या मांगे एक नजर में? तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिन ने हमको बताया है कि जब भी पहली नजर काबे पर पड़े तो ये दुआ कर ले कि ऐ अल्लाह, जब तक मैं यहाँ रहकर जो भी दुआ मांगूंगा इसको कबूल फरमा। ये जामिया दुआ है। अगर ये दुआ आपकी कबूल हो गई तो आप जितना मांगेंगे, जितना अल्लाह के पास गिड़गिड़ाएंगे, सब इंशाल्लाह कबूल होंगे। काबे को देखते हैं, क्या करेंगे? अल्लाह, हम जहां यहां पर जितनी दुआएं मांगेंगे तो उसको कबूल फरमा। ये पहली नजर की दुआ अगर आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह बकिया दुआएं तो मंजूर ही होंगी। तो बहरहाल मताफ में जाएंगे और काबे को देखकर ये दुआ करेंगे। उसके बाद दो चार मिनट के लिए खड़े होकर अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कुछ ना कुछ मांग लेंगे। उसके बाद तवाफ शुरू करेंगे। ठीक है, तवाफ शुरू करने से पहले मर्द हजरात सीधा कांधा खुला रखना पड़ेगा, इस तरह से सीधे हाथ के नीचे से, सीधे हाथ के नीचे से ऐसा सीधा कांधा खुला रखना पड़ेगा मर्द। और तो भी कोई पाबंदी नहीं है, वो बस अपने नियत करना है, तवाफ शुरू करना है। तो बहरहाल इस तरह से हम लोग दाखिल होंगे। हजरे अस्वद के पास पहुंचकर या उससे पहले पहले हम लोग नियत करेंगे, ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर का तवाफ करता हूं 7 चक्करों के साथ, तो इसको कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। यह तवाफ की नियत हो गई। अगर इतना भी बोलने आया नहीं, ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर का तवाफ करूं, कबूल फरमा, इतनी भी नियत हो गई। ठीक है, और सब चीज आप लोगों को बताई जाएगी कि कहां पर दुआ मांगना है, कहां दुआ कबूल होने की जगह है। ये सब चीजें आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिर भी एक मरतबा ये दुआ कबूल होने की जगह है, मैं आपको निशानदेही के तौर पर अभी बता देता हूँ, सुन ले गौर से। जैसे ही हम लोग काबे को दाखिल होंगे, दुआ करेंगे, सबसे पहली नजर में जो दुआ कबूल होगी वो कबूल हो जाएगी। उसके बाद हजरे अस्वद, उसके बाद खाना काबा का दरवाजा और हजरे अस्वद के दरमियान में जो जगह है जहां अभी वहां पर पुलिस वाला खड़ा होकर हजरे अस्वद की एक भीड़ को रोकता रहता है, उस जगह को मुल्तसिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुल्तसिम। खाना काबा का दरवाजा और हजरे अस्वद का कोना, इस गैप को मुल्तसिम। मुल्तसिम में हुक्म क्या है? मुल्तसिम को चिमट कर, जैसा एक बच्चा अपने, एक बाप अपने बच्चे को कैसा मये से लिपट कर माया करता है, इसी तरह मुल्तसिम को चिमट कर दुआ मांगने का हुक्म है। ये भी दुआ कबूल होने की जगह है। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो एक राउंड दायरा है। राउंड, काबे के पास राउंड एक दायरा है, सर्कल, शायद आप फोटोज में, वीडियोस में देखे होंगे। उसको हतीम बोलते हैं। यह हतीम क्या चीज है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर कितना, इस उम्मत के लिए, क़यामत तक जाने वाले लोगों के लिए कितनी आसानी फरमा कर गए हैं। असल में यह हतीम जो है, ये भी काबे का टुकड़ा है, काबे के अंदर का टुकड़ा। तो गोया कि काबा भी हतीम शामिल है। ठीक है, हतीम में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब है। बहुत सारे लोग तमन्ना करते हैं कि
कि वीआईपीज को काबे का दरवाजा खोलकर उनको नमाज पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनाहगारों को, क़यामत तक के आने वाले लोगों को एक खतीब का दायरा बाहर छोड़ दिया ताकि वहां पर आकर हम लोग गुनाहगार वहां पर नमाज पढ़ के हरम में काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब पा सके। पहले यहाँ पर आराम से छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या कर दिया ये लोग, औरतों के लिए अलग वक्त, मर्द माने के लिए अलग वक्त बना दिया। औरतों के लिए सुबह 7 बजे भीड़ लगी हुई होती है, सुबह 7 बजे क्यू में खड़ना होता है, थोड़े थोड़े करके लेडीज को छोड़ते हैं, वहां पर क्यू में खड़े होकर आप जाकर नमाज पढ़ कर आए। और मर्द हजरात के लिए शायद रात में कर दिए 10:30 11 बजे, कभी कभी बंद भी कर देते हैं, रोज बंद कर देते हैं, भीड़ खड़ी हुई होती है लेकिन खोलते नहीं। ये अभी देखना है आप लोगों के नसीब में, किस किस के नसीब में इस ग्रुप में अल्लाह ने मौका अता किया है। ये आप लोग अपनी कोशिश में करें कि वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो 2-3 चीजें हो गई दुआ ख़ुद होने की जगह की, मैंने बताया मताफ के अंदर। चौथी जगह है सफा की पहाड़ी और 5वीं जगह है मरवा की पहाड़ी और 7वीं जगह है ग्रीन लाइट। जो दौड़ते हैं ना मर्द हजरात, इस ग्रीन लाइट के दरमियान में आप जो दुआ मांगेंगे ये भी कबूल होगी, इसलिए कि इसकी निस्बत, ये जो ग्रीन लाइट में दौड़ने की जो निस्बत है अम्मा हाजिरा अलैहिस्सलाम की दौड़ की निस्बत है। आप सुने ही होंगे कि जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करते करते अल्लाह के हुक्म से जहां पर वो गए थे दीन की खातिर, अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल को छोड़कर गए थे इस बंजर जमीन में। तो हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के पानी के लिए जो दौड़ लगाई थी, जिस दौड़ के बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव से जमजम का चश्मा फूटा था, तो ये वही जगह है जहां पर दौड़कर हजरत अब्बा हाजिरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए पानी अल्लाह से मांगा था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए जमजम जारी फरमाया। ये वो निस्बत की जगह है। काबे में हर एक चीज अल्लाह ने तारीखी मकाम बनाकर बनाया है। अगर हम लोग इसका एहसास करते हुए इन जगहों पर खड़े होकर दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह जरूर कबूल करेगा। ठीक है, तो बहरहाल साथियों 7 जगह ऐसी हैं जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि यहाँ पर कबूलियत की जगह है। बाकी तो हुदूद हरम के अंदर जहां भी आप दुआ मांगेंगे कबूली होगी, इसलिए कि एक नमाज का सवाब हुदूद हरम के अंदर 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। कितना? हमारे इंडिया में क्या है, एक नमाज उस वक्त इमाम के पीछे पढ़े तो ज्यादा सवाब है, एक ही सवाब है लेकिन फजीलत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं। एक नमाज हुदूद हरम के अंदर, हुदूद हरम कहां तक है पता है? इंशाअल्लाह रास्ते में नजर आएगा, या नहीं तो मदीना जाते हुए आप लोगों को बताऊंगा मैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक हुदूद फैला हुआ है, कहीं 15 किलोमीटर तक हुदूद फैला हुआ है। तो हम लोग हमारी होटल के सामने भी मस्जिद है, मस्जिद हिजरा, वहां भी पढ़ लेंगे नमाज वक्त पर जाकर, तो आपको तब भी 1 लाख का सवाब मिलेगा। या अपनी होटल के एम फ्लोर में मुसल्ला है, वहां पर भी जाकर आप नमाज पढ़ लेंगे वक्त पर, तब भी आप लोगों को 1 लाख का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, हम लोगों को इबादत पर वक्त गुजारना है। ठीक है, कोशिश करें कि काहली और सुस्ती ना करें। आज रात तो हम लोग उमरा करके थक जाएंगे, आज एक दिन रात आप गुजार लें, लेकिन कल से जोहर के बाद से आप लोग जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में कोशिश करें, कामयाबी अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। ठीक है ना, साथी कर लेंगे ना इंशाअल्लाह।
बस मेरी तवज्जो आप लोगों के पास यही रहेगी कि वक्त पर आप इबादत करें, वक्त पर आप आकर खाना खाएं, वक्त पर आप आराम करें। ये 3 चीजें आप वक्त पर कर लेंगे तो आपका दिन भी सही गुजरेगा और खाना भी वक्त पर खा लेंगे और रात भी आपकी हशाश और बशाशियत के साथ गुजर जाएगी। लेकिन बेतरतीबी करेंगे, रात इबादत में गुजारेंगे, दिन सोने में गुजारेंगे, तो रात में नींद में क्या इबादत करेंगे और दिन में सोते हुए क्या खाना खाएंगे और आपकी नींद तो ऐसे ही ज़ाहिर हो जाएगी। इसलिए हर एक चीज़ को प्लान करके अपना वक्त गुजारें, वक्त वेस्ट करके ज़ाया ना करें। कर लेंगे ना मुसाए साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको सही समझ अता फरमाए और जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं अल्लाह उसमें हम सबको भरपूर कामयाबी अता फरमाए। गाइस बहुत खूबसूरत नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक बारकल्लाहु फीकुम अला हज्जिया। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मेरा उम्रा भी हो गया, सब होगा अल्हम्दुलिल्लाह।